elite team, you know. And I'll tell you the examples when I say elite. This project is definitely शक्तियों का मेला है. जब शक्तियां मिलती है तो एक अच्छी जगह पर मिलती है, एक अच्छे मौके पर मिलती है और एक अच्छी मंजिल पर मिलती है, तो वो कुछ और ही शक्तियां पैदा हो जाती है उसमें से. और हमारी जर्नी ऐसी ही रही है. एंड I am so very much blessed that when I followed a musician from Rajasthan about his life story, and when I understood him, a very, very eminent Kamaija player, and had put a lot of research behind it, then I wrote this story and became more inspired to go into the community and find out कि क्या है उनमें संगीत के बारे में, म्यूजिक के बारे में, और फिर भी उनका जीवन क्या है. तो ये सब मिला के I have written that story and then came about to finding who could be on my team. But then it all became that each and everyone you see seated here, we connected probably in minutes. Mithunji, exactly the same thing. It was more about the content. It was more about what it wants to tell to the world. That Manganiyars who are sitting in the huts in the interior of Barmer region of Rajasthan, they have stack of passports living in a hut, but they still not get their music out there. If we bring this, a beautiful love story based on true events, and then also mesmerizing music created by the two top award-winning musicians coming together in one film, it will really bang everywhere in the world. And let me tell you, since I landed here 4 days ago and had recordings all over at Yashraj, at Vishwa Mohan Bhatt studio in Jaipur, it was very, very magical. What they have created, I cannot give you any examples of it, but it is really good. One thing I can tell you is Mithun and Syed Qadri ji, जिसको मैं शब्दों और लफ्जों का शहंशाह और बादशाह कहता हूँ. अब है ही तो फिर. And then that love story lives with that beautiful music from Mithun. It really creates a master. Similarly, when I met Ricky Cage at IFI Goa a couple of years ago, when he was there to inaugurate with our then IB Minister Thakurji. He's still the minister. No, she's still the minister. He's still the minister. My bad. Sorry. But right after the inauguration, we met only 2 minutes and he signed it right then. That was the connection of the content and the story. We with each of them, we negotiated or we talk about the commercials way, way, way late. And you can think about how much passionate they were to join this team. And I really, really have my heartiest thank for you. It is our love. It is everyone's passion. And then bringing it in a very beautiful love story, again, based on true events. So we are out here. I am very, very proud that like Ricky Cage, from last 1 month, I'm trying to connect to him, and I only remember one movie, Catch Me If You Can. I mean, I would write, hello, hi, and he said, no, I just landed in Los Angeles. So after 2 days, oh no, hold on, I'm just going to be here in London. So, but again, we are still very good friends. I mean, you know, our friendship is so powerful that he understands what I was looking for, and we were able to
bring this together, the recordings that we did, and I'm very, very thankful, sir. So, I do not have to introduce anything more with my co-producer, Somendraji, who is right there for anything happening when I'm soundly sleeping in US, is my true partner, and I'm so lucky and blessed to have him with me. I always feel that I'm still, for every moments that are in India, I'm really here, just because of Somendraji. Thank you so much. मुकेश जी, आपने एक बात तो नहीं बताई कि आपकी जो फिल्म, शॉर्ट फिल्म जो कांस में गई है, उसके बारे में हमारे मीडिया को तो बता दीजिए. Yeah, it was a similar association with the lady you just heard about, Julia Bobkoff. She's a violinist, lives only about 20 miles from where I am in US, about 80 miles north of New York City. And we joined through a talk show, and we became together, and then we put this short film together called The Errand. 2 years ago, it was selected on the American Pavilion of the Cannes Film Festival, and since then it has won about 18 awards. It's a short film, but I'm proud that I was associated with it. फिल्म होती है, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, लार्ज हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो, लेकिन फिल्म होती है. हम सब ये जानते हैं कि जो एड्स हैं आजकल, छोटी सी जो एड्स होती हैं, जिंगल्स होती हैं, वो भी एक स्टोरी कह देती हैं इतने से में. तो डेफिनेटली, तो इतनी सी भी फिल्म है तो उसमें स्टोरी है, अगर बड़ी फिल्म है तो उसमें भी स्टोरी है. तो हम डेफिनेटली इस स्टोरी के बारे में और जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो म्यूजिक कॉम्बिनेशन है, आपको क्या आपके दिमाग में आया कि ये म्यूजिक कॉम्बिनेशन आपके लिए सही है? One, I said to you that it is a beautiful love story, or when it is woven, musically driven, तो राजस्थान तो मेरा चहीता राज्य था ही. और फिर I was following, as I said, Tapu Khan for a long time. He passed away while I was writing the story, and but he dedicated to Kamaicha all his life. And then I found out what is happening to the youths of that community. और फिर उसमें जो जुड़े हुए जो events है, I don't want to tell the whole story about the movie, but it's very beautiful. It's very beautiful. And then we are connecting it, right? तो मैं US में हूँ, मगर how I can bring them on the world stage. That was the idea. So ये love story को लेके फिर हम किस तरह से उसको आगे ले जा सकते हैं. तो उसमें फिर I talked to Ricky, I talked to Mithun, and they both were very excited about it. And so that's the reason we are coming here and putting this in front of you. Just the music-driven film. जैसे आपने कहा था, right? Truly speaking, music doesn't have a language. And if a movie is truly driven by music and viewed with a love story, I can tell you that it does. Hindi mein ho bhaiya, right? English mein ho, French mein ho, it doesn't really matter. The music is going to drive that movie. And one song which we are doing, just to answer your question finally, is about bringing all the string instruments of Rajasthan, right, who have beautiful history, more than 300 years. उसको लेके, right, half जैसे वेस्टर्न सिम्फनी में करते हैं, एक बाजू पर ये है और दूसरी बाजू पर पूरी very elite symphony of the world बैठी है, and then they are playing on the same tune. Think about the, and then it is topped off with beautiful lyrics, as I mentioned. That is going to be magical. That is going to be magical. And then I was blessed 3 days ago. Vishnu Mohan Bhattji thought to put his Mohan Veena into it. I said, oh my God, I could not sleep that night. Yes, it is amazing. ये आप जो कह रहे हैं वो सुन के ही ऐसा पूरा एक एनर्जी ऊपर से नीचे तक चला गया कि एक सिम्फनी जो हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक की जो सिम्फनी है और जो वेस्टर्न म्यूजिक की सिम्फनी, वो जब एक साथ बजेगी और एक प्लेटफॉर्म पर बजेगी तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मैजिक होगा.
मैं अगला सवाल करना चाहूंगी सोमेंद्र जी से। सोमेंद्र जी, आपको ये पूछना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में जुड़ के आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आपको कैसे लगा कि इस प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहिए? थैंक यू। खमागणी सर, बम्बई, राजस्थान और आप सभी का स्वागत है। और जो सब पूरे वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं हम सभी को थैंक्स। आपने पूछा कि ये प्रोजेक्ट जुड़ने से या कैसे जुड़ा हुआ, और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ सभी पूरी टीम का कि राजस्थान, और आप देख रहे हैं डायस पे जितने लोग बैठे हैं उनकी जड़ें राजस्थान से जुड़ी है। तो मैं बताऊंगा नहीं, पर एक एक करके सब अनवेल होगा। अभी तो रिकी भी बताएंगे, सभी बताएंगे कि कैसे हम राजस्थान से जुड़े हुए हैं। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट जब मुकेश जी ने करीब कोविड टाइम 2 साल पहले हमने शेयर किया, और उसके बाद हमने रिसर्च किया इसको, जैसलमेर, बाड़मेर, पूरा मांगनिया कम्युनिटी, उसके बाद में हमने पूरी इसकी स्क्रिप्ट रेडी हुई। फिर हम अनूप जी और जितने भी लोग हम हैं हमने बात किया। तो कहने का प्राउड फीलिंग है कि ये पहला राजस्थान का प्रोजेक्ट है जो कि इंटरनेशनली म्यूजिकल ट्रैवल जर्नी फिल्म है, लव स्टोरी है। बट एक जो मुकाम होता है कि राजस्थानी फिल्में जब हम रीजनल सिनेमा की बात करते हैं तो हमारा राज्य बहुत, हम पिछड़ा प्रदेश समझते हैं अपने आप को। जब हम साउथ और दूसरे रीजनल भाषा की फिल्मों को देखते हैं, हम उन्हें सीखना चाहते हैं, हम उन्हें फॉलो करना चाहते हैं कि किस तरह एक रीजनल सिनेमा इंडस्ट्री डेवलप होती है। बट जब हम अपने राजस्थान की फिल्मों को देखते हैं तो पिछले 5-8 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ। आई एम ए फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ्ट। इन दैट आई प्रमोटिंग द रीजनल सिनेमा, जो कि एक सिनेमा राजस्थान का डेवलप हो, वहाँ के फिल्म मेकर्स को मौका मिले। और सबसे बड़ी चीज होती है को प्रोडक्शन। और मुझे बहुत गर्व, खुशी की बात है कि ये प्रोजेक्ट एज ए को प्रोडक्शन आज हमने यूएस और राजस्थान को एक इस तरह मुकाम पे को प्रोडक्शन किया है। और एज ए को प्रोड्यूसर जो मैं रिप्रेजेंट करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक रीजनल सिनेमा कहानी जो कि एक ट्रैवल कर रही है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, और संगीत जो एक ट्रैवल कर रहा है, और सब जो जुड़े हुए जैसे बताया विश्व मोहन भट्ट जी, गाजी खान, मामे खान, मोहम्मद फैज, आई थिंक सभी जड़ें राजस्थान से जुड़ी और सभी वर्ल्ड वाइड उसको लोगों को जानते भी हैं। तो इस तरह से इस कहानी को हम पूरे वर्ल्ड वाइड ले जा रहे हैं, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे आने वाली जनरेशन और राजस्थान रीजनल सिनेमा को कितना एक सीखने को मिलेगा जब इतने दिग्गज, इतने लोग वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं बहुत ऐसा शुक्रिया, इतना खुशी हो रही है कि ये मैं आने वाला भविष्य जो 5 साल राजस्थान और रीजनल सिनेमा का क्या होने वाला है, ये फिल्म शायद उसको रिप्रेजेंट करेगी। थैंक यू। सबसे पहले जितने लोग यहाँ पर आए हैं मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका आभार मानता हूँ, आप समय निकाल कर आए। मैम, आपका जो प्रश्न है उस विषय में ये मैं कहना चाहूँगा, देखिए मुझे इस साल जो है 19 साल पूरे होते हैं बतौर हिंदुस्तानी संगीतकार। मेरी पहली फिल्म थी 2005 में, जिसका नाम था जहर। तो जब हम देखते हैं, मैं अपने सफर को जब देखता हूँ, चाहे मैं जहर की बात करूँ, अनवर की बात करूँ, इनफैक्ट जहर में सईद कादरी साहब मेरे साथ थे, अनवर में मेरे साथ रहे, बहुत सारी फिल्मों में हमने साथ काम किया। लेकिन जब मैं फिल्मों की अपनी बात करता हूँ, चाहे जहर हो, मर्डर 2, आशिकी 2, कबीर सिंह, तो मैं देखता हूं कि जो चीज हमारी सभ्यता में एक बहुत लोहे का काम करती है वो है हमारा संगीत। हमारे जो भारतीय सिनेमा का इतिहास भी रहा है, अगर हम 50वीं दशक की भी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि चाहे हम सी रामचंद्र साहब की म्यूजिक की बात करें, हुसन लाल भगत राम की बात करें, लेटर ऑन शंकर जयकिशन, राज कपूर साहब का म्यूजिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड ऑल द ग्रेट्स, हम देखते हैं कि एज अ सिविलाइजेशन संगीत जो है वो हमारे नस में बहुत बड़ी गहराई से बसा हुआ है। तो मैं यही सोच रहा था कि ये जो सफर मेरा रहा है, इस देश ने, हमारी फ्रेटर्निटी ने, आप सभी लोगों ने, हमारे सुनने वालों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। पिछले 1-2 सालों से मैं इस ताक में था कि
मैं अब कुछ संगीत के लिए, मैं कुछ अपने देश के लिए, मैं कुछ अपने देश की मिट्टी के लिए कुछ करना चाहता हूँ और एक अलग दिशा भी इख्तियार करना चाहता हूँ। ये बातें मेरे जहन में चली रही थी और तब मुकेश जी से मेरा संपर्क हुआ, उन्होंने मुझसे वार्तालाप किया और उन्होंने मुझे अपना दर्शन बताया और मुझे ये बात बड़ी अनोखी लगी कि ये जो पूरा जो कहानी कही जा रही है ये संगीत के माध्यम से कही जा रही है। तो अभी आप देखेंगे कि आज का भी जो इवेंट है, अभी बहुत सारी चीजें मुकेश जी, सोमेंद्र जी फाइनल करने वाले हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इस चीज पर है कि इस फिल्म का जो आधार है वो संगीत है। तो ये जो दर्शन है और ये जो संगीत के प्रति एक मनोबल है, एक कॉन्फिडेंस है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने यही देखा कि हम जब फिल्मों की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, आज भी हिंदी फिल्मों में हम यही बात करते हैं कि अगर म्यूजिक जो है लोगों से उसका जो है वास्ता बन जाए तो फिल्म की जो ओपनिंग होती है बहुत मजबूत हो जाती है। इसका मतलब संगीत एक इतना मजबूत माध्यम है। तो मैं एक ऐसी फिल्म से जुड़ना चाह रहा था जहां पे मैं इस संगीत के जरिए और रंगों को पेश कर सकूं और अपने संगीत को एक नया चैनल दे सकूं। और फिर मैंने देखा कि जो कहानी है ये राजस्थान से जुड़ी हुई है। जैसे सोमेंद्र जी ने बताया कि जो लांगा कम्युनिटी है, मांगणियार है, उनके संगीत को मैंने बहुत सुना और मुझे लगा कि इस रंग को जो है, अगर मैं भारत का वासी होने के उसका प्रतिनिधि करता हूं तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो उसको लेकर और सईद कदरी साहब की पोइट्री को लेकर जो हमने एक्सप्लोरेशन किया है, हमारा इंटेंशन यही है कि हम भारत के इस संगीत के दुनिया के प्लेटफॉर्म तक लेके जाए, जैसे रिकी कर रहे हैं। इन्होंने हमारे देश का नाम गौरव बहुत बढ़ा दिया है। हाल ही में मेरा जो गाना था सनम रे, जो आप लोग ने सुना है, उसकी धुन इस्तेमाल की गई थी एक गाने में जिसका नाम है वूपटी, जो बिलबोर्ड हिप हॉप पे नंबर 1 पे जाके बैठा और वो एक हिंदुस्तानी धुन पर आधारित है। सनम रे एक हिंदुस्तानी धुन है। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जो है तैयार है कि भारत से जो संगीत आ रहा है उसके लिए, भारत के कलाकारों के लिए, भारत के संगीतकारों के लिए। और यही सही समय है जब हम अपने झंडे को और अपने क्रिएटिव बातों को एक ऊंचे स्तर पर लेके जा सकते हैं। तो मुझे लगा कि मुकेश जी का जो दर्शन है, सोमेंद्र जी का दर्शन है और कादरी साहब मेरे साथ में है, तो मुझे लगा ये सही समय है इस फिल्म से जुड़ने के लिए। और हमने जो शुरुआत की है वही इतनी खूबसूरत है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस सफर में हम आगे कैसे बढ़ते हैं। थैंक यू। हम सब तो जानते ही हैं कि संगीत में एक जादू है। पहले संगीत से भी कई बीमारियों का उपचार होता था। ये तो हमने कई बार सुना है कि संगीत में इतना जादू है कि वो आपकी बीमारी भी ठीक कर सकता है। तो ऐसे जादुई संगीत जो भारत का संगीत है उसे कंपेयर कहीं से नहीं कर सकते। लेकिन अगर साथ में और सिम्फनी मिल जाए तो ये एक और ही नया रंग ले लेगा, एक और नया जादू पैदा करेगा। तो मैं रिकी जी आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप यहाँ की, आपकी जड़ें जो हैं वो राजस्थान की हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनली जब कोई काम करते हैं, जब आपको पुरस्कार दिया जाता है, तो आपका फील क्या होता है और इस प्रोजेक्ट के साथ आपका जुड़ने का क्या इंटेंशन था? First of all, I'd like to second what Mithun said, that thank you so much everybody for showing up. I know it's very difficult to travel in the traffic and get here on time, but thank you so much for showing up. It means a lot to all of us. And of course, it's a huge honor for me to work on this project with Somendra ji and Mukesh ji. I'm very grateful that they brought me on this project. And nowadays the way that music is consumed in today's times, it's very difficult to make timeless music, because music has become very it's got sort of like it's appealing for a limited time because of the way streaming works and because of the way that we listen to music. So there are very few timeless classics that come out nowadays because of this. And in the last few years, I've seen that most of the timeless classics that have come out have actually been composed by Mithun. And so I think a big round of applause to him. He's one of the greatest music directors that we have today in India. One of the most talented, and I'm a huge fan of his. So that's why for a musical that is composed by Mithun, for me to guest compose a song was equally a huge, huge honor for me. So I'm very grateful to be on this project and to get to meet him today. But anyway, so
I believe that, the one thing that attracted me to this film was that there is this huge myth in India that if you want to make something international or you want to create music that is appreciated all over the world, then we have to make music in English, or we have to make music which is Western pop or Western hip hop and genres that, that the Western world makes. But that is not true, because the musicians and the films that have gotten international recognition from India have always been deeply rooted within Indian traditions. If you look at people who have won even Grammy Awards, like people like Ustad Zakir Hussain, or you look at Pandit Ravi Shankar or Pandit Vishwamohan Bhatt, or Shakti, all of them have been very deeply rooted within Indian traditions. Or even movies like Lagan or RRR and Salam Bombay, these movies which have gotten international recognition are all movies which are deeply rooted within Indianness. So that's the beauty of this particular movie of Millionaires of Love, that it's deeply rooted within Indian culture. And of course, for me it was a return back to my roots, because my father is from Rajasthan and I've never been very connected to Rajasthan except for performing a few concerts over there in the past. So this was my opportunity to connect with my roots and connect with the Manganiyas and the folk musicians of Rajasthan to create this piece of music for Millionaires of Love. So very grateful to be over here and very grateful to be a part of this gathering. Thank you. अब हम शब्दों के बादशाह सैयद कादरी जी से बात करना चाहेंगे। सैयद जी, मेरे पास तो शब्द नहीं है कैसे मैं आपसे बात करूं, बिकॉज मैं सच में कहूं कि मुझे बोलना ज्यादा नहीं आता, मैं सिर्फ सुन सकती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं मतलब तान से नहीं लेकिन कान से हूँ। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, लफ्ज बहुत पसंद है। मुझे अच्छा लगता है कोई अच्छी शायरी हो, अच्छी पोइट्री हो, या कोई भी अच्छा कहने वाला हो, गाने वाला हो। मैं सोचती हूँ जो अच्छा गा सकते हैं, अच्छा बजा सकते हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है उस ऊपर वाले से। मैं वहां पर नहीं पहुंच सकती, लेकिन आपके थ्रू, आप लोगों के थ्रू, जितने लोग यहाँ पर डाइस पर हैं, सबके थ्रू हम वहां पहुंच सकते हैं। तो सैयद जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे अपनी जर्नी इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमको सुनने आए हैं। ये फिल्म मेरे लिए अपनी मट्टी का कर्ज उतारने की फिल्म है। क्या? क्योंकि मैं राजस्थान में पैदा हुआ, वहाँ परवरिश हुई मेरी, मैंने पढ़ाई की, बड़ा हुआ। वहाँ के गली मोहल्ले, झील, बावड़ियाँ, रेगिस्तान, वहाँ का वीराना भी बहुत खूबसूरत है। मैं उन सबको अपने साथ लेके इस दिल में मुंबई शहर में आया, और आज भी वही चीजें हैं। कहते हैं प्यासी जमीन में भूख उठती है, जब उस प्यासी जमीन से आया हूँ, मेरे अंदर भी एक भूख है। उस भूख को मैं अपने गानों के जरिए लोगों तक पहुंचाता हूँ, और इसीलिए मेरे गाने जो है खास करके यूथ और लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि सोमेंद्र जी ने एक दिन मुझसे जिक्र किया कि सईद भाई, इस तरह की एक फिल्म जो है बनाने का ख्याल है। हमारे एक मित्र हैं मुकेश जी पारिक साहब, वो भी इस तरह से सोच रहे हैं इस फिल्म को बनाने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि आप इसमें शामिल हो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने बाकी बातें तो बाद में सोची। मैंने कहा सईद कादरी, अब ये वक्त आ गया कि जिस जमीन ने तुझे सब कुछ दिया, जहाँ पे तू पैदा हुआ, जहाँ तेरी परवरिश हुई, अब उसका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया। मैं बहुत दिनों से इस ख्याल में था कि कोई ऐसी फिल्म आए कि जहाँ मैं अपनी मिट्टी की बात कर सकूँ, जहाँ अपने एहसास और महसूसात को लोगों तक रख सकूं, और ये मौका मुझे मिला। उसके लिए मैं मुकेश पारिक साहब का, सोमेंद्र जी का, भाई ब्रेकी का, और मेरे दोस्त कह दें इसको, मेरा बच्चा कह दें, मिथुन के साथ काम करने का मौका मिला। और मैं इसके लिए तहे दिल से मुकेश जी आपका एक बार फिर से और सोमेंद्र जी शुक्रगुजार हूँ इस मौका देने के लिए। और जहाँ तक शायरी की बात है, देखिए शायरी आपके आसपास होती है, सिर्फ आपकी नजर की बात है, नजरिए की बात है कि आप उस पोइट्री को कैसे देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, ये आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। मतलब मसलन मैं समझाऊं, आप जो कह रही थी गीत के बारे में, तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता तो खिड़की के पास बैठा करता था अक्सर, और उस खिड़की के बाहर से कॉलेज में बहुत सारे नीम के पेड़ थे। तो जब पतझड़ का मौसम आता था तो पत्ते गिर जाते थे, और उन पत्तों का एक ढेर इकट्ठा करके उनमें आग लगा दी जाती थी, उन्हें जला दिया जाता था। तो मेरे जहन में एक मंजर आया कि मैंने उस पे एक गाना लिखा, जो जिस्म फिल्म में अभी यूज किया गया बाद में, कि मेरे ख्वाबों का
हर एक नक्श मिटा दे कोई, मेरे ख्वाबों का हर एक नक्श मिटा दे कोई, सूखे पत्तों का बचा ढेर जला दे कोई। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो पोइट्री आपके आसपास है, सिर्फ देखने की जरूरत है, उसको महसूस करने की जरूरत है। इसमें इतना ही कहना चाहूंगा, उम्मीद करता हूं कि आपकी दुआएं हमारे साथ रहेगी और ये जो प्रोजेक्ट हम लेके चले इसमें जरूर कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सो मच। सही बात कही, नजरिया बदलिए, नजर पूरे नजारे बदल जाएंगे। देखा, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, फंबल कर दिया सर आपके सामने। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। ओके, तो अनूप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी एंट्री इस प्रोजेक्ट में कैसे हुई? टैंटन टाइप्स। नमस्कार आप सबको। एक्चुअली बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, राजस्थान से जुड़ा हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम और बड़ा हिस्सा जो है वो जयपुर में गुजरा। मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, इनफैक्ट मेरी जो थिएटर रंगमंच की जो जर्नी है, जो एक्टिंग से लगाव है, वो सब जयपुर में ही शुरू हुआ। बिकॉज जैसा कि सब ने कहा, यहाँ जितने महानुभाव बैठे हैं सब के सब जो हैं वो राजस्थान से जुड़े हुए हैं और राजस्थान कल्चरली कितना रिच है ये हम जानते हैं। तो जैसा कि कादरी साहब ने कहा कि होता है ना कि आप जहाँ पले बड़े हैं, जहाँ पढ़े लिखे हैं, वहाँ से आपका एक नाता हमेशा रहता है। और कभी आपको ज़िंदगी में अगर ऐसा मौका मिले कि उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ का हिस्सा बनने का, तो मुझे लगता है कि बिना सोचे समझे उसमें कूद जाना चाहिए। तो आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले की बात है, आई थिंक फरवरी फर्स्ट वीक का ही महीना था। हम लोग जयपुर में थे सोमेंद्र जी के फिल्म फेस्टिवल में, और वहाँ पर एक रात खाना खाने के बाद सोमेंद्र जी ने मेरी मुलाकात मुकेश जी से कराई, और वहीं डाइनिंग रूम में बैठे बैठे ही मुकेश जी ने मुझे पूरी कहानी सुना डाली इस फिल्म की। और मुझे सुन के लगा कि कुछ तो बात है इस कहानी में। ऑब्वियसली इन्होंने म्यूजिक की जिक्र किया, और मुझे याद है उस वक्त मिथुन और रिकी का जिक्र उस वक्त भी हो चुका था, 1 साल पहले भी। जब मुझे पता चला कि ये इस तरह की एक फिल्म बनने जा रही है और म्यूजिक एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनने जा रहा है, और जो कैरेक्टर्स इन्होंने मुझे सुनाए, जो कहानी सुनाई, और उसी रात को हमने शायद अपना ईमेल आईडी एक्सचेंज किया। और जब मैं सुबह उठा तो मेरे मेल इनबॉक्स में पूरी की पूरी फुल स्क्रीन प्ले था फिल्म का, और मैंने भी मौका नहीं छोड़ा और लगे हाथ उसको फटाफट पढ़ लिया और इमीडिएटली इनको मेल पे रिप्लाई कर दिया कि सर आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म व्हेनेवर यू गोना स्टार्ट। थोड़ी बहुत हमारी बातचीत होती रही है और फिर फाइनली आज हम यहाँ मिले और मुकेश जी का मेल आया कि हम आज के अनाउंस करने वाले हैं। मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि म्यूजिक तो बहुत ही बेहतरीन होगा, बिकॉज इट्स अ म्यूजिकल फिल्म। म्यूजिक जो है वो कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन जो किरदार मुकेश जी ने क्रिएट किए हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जिनकी एक कहानी है, जिनकी ये जर्नी है, वो इतने अर्दी, इतने रियल हैं कि आप उनको जब देखेंगे, उनकी जिंदगी को में झांकने की कोशिश करेंगे इस फिल्म के थ्रू, तो आपको लगेगा कि यार ये तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। तो मैं तो बहुत खुशकिस्मत मानूंगा अपने आप को कि इन सब के बीच यहाँ साथ आज बैठा हूँ और इनके द्वारा जो क्रिएशन होने वाला है उसका मैं एक हिस्सा बनूंगा, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बनूंगा उस कलाकृति को आगे ले जाने के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मुकेश जी, एंड थैंक यू सोमेंद्र जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू मुकेश जी। थैंक यू मुकेश जी। हम आप पर वापस आते हैं। अभी अनूप जी ने कहा कि किरदार बहुत सारे हैं, तो क्या हम आगे और किरदार देखेंगे? आगे ये स्टोरी, ये जो जर्नी है वो आगे और बढ़ती जाएगी, तो और कौन कौन किरदार टेंटेटिवली अभी तक आपने क्या क्या सोचे हैं? मैंने करीब 2 हफ्ते पहले सैयद कादरी जी और मिथुन से एक जूम मीटिंग की थी। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आपकी पैशन को देखकर मुझे ये लगता है कि ये रुकने वाली ट्रेन नहीं है। तो मैंने उनको ये भी कहा कि सारी दुनिया में एक ही चीज पर टैक्स नहीं लगा जाता है, वो है सपना। तो सपनों पे टैक्स नहीं है भैया, और सपनों को कोई कैद भी नहीं कर सकता है। तो
we are very committed with a expected cast. Number one, हम जरूर उनको इस फिल्म में इस तरह से लाएंगे कि जो सच में इस टीम के साथ जुड़ सकते हैं और अच्छी तरह से जो हमें ड्रामा, म्यूजिकल ड्रामा weaved in a love story and a musical वो करना है, वो हो सकेगा. 60 to 70% of the movie will be filmed in Rajasthan. We are expecting about 10 or 15% in Indonesia, and then remaining about 10% in Los Angeles or some parts of US. But we are very hopeful that this team is going to grow, and हमने जैसे बताया कि शक्तियों के साथ शक्ति मिलती है, तो ये अणु से अणु मिलके एक बहुत बड़ी शक्ति पैदा होती है. तो उसी तरह से ये आगे चलेगी. तो क्या हमें पता है कि कितने गाने हैं अभी इस फिल्म में? उससे ज्यादा मत पूछना. ओके, ठीक है, ठीक है. चार गाने हैं और 2 गाने की तो मैंने आपको ऑलरेडी बात कर दी. एंड those nights that I spent, let me tell you, in that studio, I realized how much it takes and how much a musician puts into it to create it. It was like, okay, take, retake for one folk musician's instrument, you know, unbelievably done, you know. So I'm blessed. तो 4 गाने होंगे और दो गानों की जर्नी शुरू हो गई है और खत्म भी होगी. और 2 गाने जो है वो भी बहुत यूनिक है, कॉम्पिंग मेनी वेरी पॉपुलर फिल्म्स. सो कॉमेडी, ड्रामा, a little bit of action, and then weaving all that into a beautiful love story. मैं सिर्फ इतना, एक बार मैंने सुना था, मदन मोहन जी के बारे में ये सुना था कि जब एक म्यूजिशियन एक गाना बनाता है तो हम सिर्फ वो सुन करके वाह वाह कह देते हैं या कहते हैं यार अच्छा नहीं लगा, कुछ जमा नहीं. लेकिन वो म्यूजिशियन की जो मेहनत है, जो गाना बनाने की जो मेहनत है, वो इतनी ज्यादा होती है कि वो एक गाने के साथ वो म्यूजिशियन 1 साल और कम हो जाता है. ये कहा जाता है कि उनकी लाइफ कम होती जाती है, बिकॉज उनका जो है वो 100% क्या, वो 10,000% दे देते हैं उस गाने के लिए. और लेकिन फिर हम सिर्फ एक बार सुन के वो जज कर देते हैं किसी भी गाने को. किसी भी गाने के बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. जैसे ये एक पूरी टीम वर्क है, वैसे भी ये पूरी एक टीम वर्क है. तो मैं बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहूंगी मिलेनियर्स ऑफ लव के लिए. और अब मैं चाहूंगी कि जो मीडिया से किसी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज you can ask questions. Mike, please. प्रवाद मांग रहा भाई. प्रवाद मांग रहा भाई. मिथुन सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि मतलब जो रीजनल आर्टिस्ट होते हैं पर्टिकुलरली राजस्थान के यहाँ, उनको कितना ज्यादा मतलब एप्रिशिएशन मिलना चाहिए फिल्म मीडियम हो या और प्लेटफॉर्म्स हो जहाँ पे उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए. क्योंकि बेसिकली जब बॉलीवुड से एसोसिएट होता है कोई कलाकार तभी उसको बड़ा समझा जाता है. अगर इंडिपेंडेंटली कोई काम करता है तो वो रिकॉग्निशन मिल नहीं पाता उसे. तो वो बताइए क्या कहेंगे. जी भाई, इस विषय पर मेरे विचार ये है. देखिए कि इसमें मुझे लगता है दोष किसी का नहीं है. ये बात समझना हम सबके लिए बहुत अहम है कि हम एक सिनेमा ड्रिवन कल्चर है. क्योंकि हमारे देश में जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिनेमा जो है वो एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी सभ्यता का. हम सब बड़े हुए हैं, जो हमारे देश के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो हमारे बचपन का हिस्सा है. हमारे घरों में, गलियों में उनका जिक्र है, सीन्स का जिक्र है, डायलॉग्स का जिक्र है, वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है. तो जब कोई भी चीज सिनेमा से जुड़ जाती है तो मुझे लगता है वो अपने आप इट बिकम्स दैट थिंग. लेकिन मुझे लगता है वो बदलाव आ रहा है. जैसे आपने सही कहा कि मुझे लगता है भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर अलग अलग, जब आप 60 किलोमीटर भी पार कर जाते हैं तो वहां का जो है राग बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, उसका जो तलफ्फुज है बदल जाता है. तो जब इतना कुछ है इस देश में, मुझे लगता है ये एक जिम्मेदारी हर आर्टिस्ट
अपने में उठाए, और मुझे लगता है लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए भी मैंने मामे खान साहब को रिकॉर्ड किया, तो मैंने उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वो अपने कल्चर को लेकर, अपने संगीत को लेकर दुनिया भर में परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो बदलाव, आपने बहुत सही पूछा, वो बदलाव डेफिनेटली आना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है वो समय आ रहा है, क्योंकि अब जो है इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी, उसके दरवाजे भी खुल गए हैं। और मुझे लगता है कि हमारे जो अलग अलग इस प्रोजेक्ट में मुझे मौका मिल रहा है कि मैं राजस्थानी म्यूजिक को जो है उस फोक को लेकर एक्सप्लोर करूं, उसको इम्प्रोवाइज करूं। मेरा दर्शन तो ये है कि आने वाले सालों में और भी जो है, जैसे महाराष्ट्र का जो फोक म्यूजिक है मैं उसको भी इस्तेमाल करूं, जो पंजाब का फोक है जो इतना रिच है, बंगाल का बाउल संगीत है, मुझे लगता है इतने सारे अलग रंग है भारत में। और मैं रिकी से बिल्कुल सहमत हूँ उस विषय पर कि अगर हमें अपने संगीत को जो है एक पश्चिमी स्तर पर, एक ग्लोबल स्तर पर लेकर जाना है, तो हमें जो है अपनी पहचान लेकर जानी है। हमें जो चीज अनोखा बनाती है वो है हम जो हिंदुस्तानी है, जो हमारा रंग है। तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी आवर स्ट्रेंथ, और मुझे लगता है वो बदलाव आने वाले साल में डेफिनेटली हम देखेंगे। नेक्स्ट और प्लीज पूछ लो, सारी ऐसे पूछ ले। हेलो रिक्की जी, मेरा सवाल आपसे है कि मतलब क्या हम बस इसमें क्या जो है मतलब इंडियन म्यूजिक और हॉलीवुड के म्यूजिशियन एक फ्यूजन देख सकते हैं कि क्या है? No, that is something that I've been doing for a while now. Like my last Grammy Award-winning album was an album which was a collaboration between me and Stuart Copeland, who was considered to be the greatest drummer in the history of music. That is the former drummer of the band The Police. So there have been collaborations between Indian and Western musicians for a while. Even this year, the album that won the Grammy Award, that is Shakti, was a collaboration between John McLaughlin and Indian musicians. So these kind of collaborations have happened. But you know, the thing is that adding on to what Mithun said earlier about Indian traditions and your question about folk musicians getting the limelight. Even though I completely agree with what Mithun said, I've got another point of view also, which is a little controversial, but I'll say it anyway. But the thing is that when a Bollywood musician and a Bollywood composer and a singer performs outside of India, like let's say in New York or in New Jersey or in London or in Moscow or any place like that, then they are able to fill up stadiums, they're able to fill up complete auditoriums and get huge crowds and audiences. But the only people who show up in those audiences are people from the Indian diaspora. Because barring a few songs from Bollywood, there are a few songs in Bollywood that have broken cultural barriers, but barring a few songs, Bollywood has actually not completely broken cultural barriers in that way. The people who have actually broken cultural barriers are the folk and the classical musicians. Because I remember when I was 19 years old, I'd gone to San Francisco and I watched a concert of Pandit Ravi Shankar. And I was shocked sitting down in that concert that the people sitting down in the auditorium was very representative of the city itself. So there was just 5 or 6% Asian people inside the auditorium. It was mainly a Caucasian, American population sitting down in the audience and listening to pure Indian classical music over there. But in India, unfortunately, we're not appreciating our own talent. Like, for example, everybody knows who Pandit Ravi Shankar was. Everybody knows greatest sitarist ever. Everybody knows Bharat Ratna winner. Everybody knows his daughter is Anushka Shankar and Nora Jones. I can challenge everybody over here. Can anybody name one album of Pandit Ravi Shankar? He's made 70 albums. Go on to his Wikipedia page, he's made 70 albums. Can anybody name one album of his? Greatest Indian musician ever in the history. Name one song of his. Or just hum a tune of his. Nobody can. But outside, he's been appreciated. He's won 3 Grammy Awards. He's won a Lifetime Achievement Award at the Grammys. And he's only been playing pure Indian classical music. He's not playing electric guitar, he's not playing hip-hop music and all. He's playing pure Indian classical music. But outside he's appreciated, but in our country he was not appreciated. So we need to change that, and I believe that this film will be a very, very good step. Millionaires of Love will be a very good step into that direction. Sayyed sir, hello. Sir. So, where on the side, left hand side. Right here.
सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मतलब हम बॉलीवुड में देखते हैं कि मतलब पहले जैसे उर्दू का जो है इस्तेमाल किया जाता था, अब ज्यादातर पंजाबी फोक सॉन्ग या पंजाबी गाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा वो है, मतलब कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिस तरह से मतलब कि म्यूजिक बढ़नी चाहिए आगे और उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है? ये देखिए, भाषा कोई भी हो, उस हर भाषा की अपनी एक मिठास होती है, चाहे वो बंगाली हो, पंजाबी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, है ना। हर भाषा में आप देखिए सबका एक लोक संगीत है जो अपने एक मिट्टी की बात कहता है, अपनी मिट्टी की बात कहता है, अपनी तहजीब की बात करता है, अपने संस्कारों की बात करता है। तो गाना किसी भी भाषा में हो वो हमेशा अच्छा होता है, उसमें एक मिठास होती है। और जहाँ ताल्लुक आपने उर्दू का कहा, तो भाई मैं तो उर्दू में ही लिखता हूँ, आपने मेरे गाने सुने होंगे, है ना। तो मगर मैं हर भाषा से प्यार करता हूँ। आप जो पंजाबी गाने कह रहे हैं, मुझे बहुत सारे पंजाबी गाने पसंद है ना। मेरा एक गाना तो गुरु रंधावा ने भी गाया है, तो बढ़िया है सब। हर भाषा की अपनी मिठास है, मोहब्बत है, और हर भाषा का एक संगीत बनना चाहिए, उसका गीत बनना चाहिए। सर आपको लगता है कि उर्दू जो है वो कम होती जा रही है बॉलीवुड से? जी, आपको लगता है उर्दू जो है कम होती जा रही है बॉलीवुड? नहीं, देखिए हम जो भाषा आप और मैं जो बोल रहे हैं ना, वो एक हिंदुस्तानी भाषा है, उसमें सारी भाषाएं शामिल, हिंदी भी है, उर्दू भी है ना। एग्जैक्टली आज हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसमें सारी भाषा है ना। हाँ, सब मिक्स है। मैं ये समझती हूँ कि ये क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो प्योर हिंदी नहीं है, प्योर इंग्लिश नहीं है, प्योर उर्दू नहीं है, तो इट्स लाइक अ खिचड़ी। ये एकता की बात है, मेरी बात है। सो मैं आप सबसे 1 मिनट और लेना चाहूंगी कि हमारे जो मेहमान हैं वो आ चुके हैं। मोहम्मद फैज जी, आपका स्वागत है, और मैं चाहूंगी मुकेश जी और सुमेंद्र जी मिलकर के इनका स्वागत करें। सेंटर में आइए। नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए, मुकेश जी साथ में कम क्लोज। यस, बहुत बढ़िया। I request everyone for a photo op, please. आपको मैं विश करना चाहूंगी belated happy birthday. तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप इस प्रोजेक्ट में कैसे जुड़े, और हमारी मीडिया को आपका पहले एक राग सुना दीजिए। रात को तो अभी मैं नहीं हूँ, बट हाँ मैं अपना गाना जरूर सुनाना चाहूंगा, कभी शाम ढले। ओ कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, ओ लगे गम गले तो मेरे दिल में आ जाना, मेरा घर जलाने वाले सुन मेरी, ओ तेरा घर जले तो मेरे दिल में आ जाना। और थैंक यू फॉर विशिंग मी हैप्पी बर्थडे। मैं इस प्रोजेक्ट में जुड़ा जब मैं रियलिटी शो में था, विनिंग से बहुत पहले, और मुकेश जी का मेरे पास मैसेज आया था, और तब से हम कनेक्टेड हैं, और सारी अपडेट्स मुझे मिलती रही। एंड कल परसों में ही मैंने रिकी सर के साथ गाना डब किया है, और सैयद सर भी थे। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मुझे वो गाना मिल रहा है, और आई एम फीलिंग वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और यही कहना चाहूँगा। आप सब देख सकते हैं कि डायस पे जितने लोग हैं, सारे के सारे जिनके रूट्स जो हैं वो राजस्थान से हैं। Am I right? Everyone is from राजस्थान, जिनके जड़ें जब राजस्थान से हैं। तो ये हमारा राजस्थानी कल्चर आप सबके सामने है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? लिपिका जी। अच्छा, मुकेश जी, सारे कलाकार राजस्थान के होंगे कुछ, या कुछ कलाकार होंगे राजस्थान से? राजस्थान की बात है कि कह रहा हूँ, कुछ कलाकार भी होंगे। ये खुद राजस्थान से हैं इसलिए पूछ रहे हैं। यस सर। यूपी वाले चलेंगे? नहीं यूपी वाले कुछ कलाकार होंगे मुकेश जी राजस्थान से। यूपी वाले भी चलेगा, यूपी बिहार ना, ये राजस्थान के। अभी राजस्थान को दुनिया में ले जाना है, राइट? तो हम आप देख रहे हैं हाउ मच प्राउड वी आर
और उसी को लेके हमें शायद राजस्थान से कलाकार न मिले, मगर और भी कलाकार जिन्हें ये पूरी स्टोरी लाइन पसंद है, हमें सामने से फोन कॉल मिल रहे हैं और आई एम वेरी ब्लेस्ड फॉर दैट। तो हाँ, हम सभी जगह से लेंगे और शायद आपने एवी में देखा है या पता नहीं है मुझे, मगर दुनिया की सबसे बहुत अच्छी कैरोलाइन कैम्पबेल करके वायलिनिस्ट है। ये ऐसा होता है कि जब हमारी पैशन देखते हैं और म्यूजिकल जर्नी देखते हैं तो उन्हें सामने से लगा हो जाता है कि मुकेश, आई वांट टू बी विथ यू, यू नो, काइंड ऑफ अ थिंग। वी हैव नॉट डिस्कस्ड एनीथिंग, right? Just based on the content. I got a call just a few weeks before I came here from a Hollywood producer. तो बोले हमारा नाम रख दो। तो बोला हम ठहरो बात करते हैं, right? I want to see how you want to get involved. So हम सभी जगह से लेंगे, मगर हमारा जो कंटेंट है वो भी सोनी यूएसए को भी इतना ही पसंद आया है। और अभी ज़्यादा मुझे कहना नहीं है क्योंकि हमें कुछ ब्लैक एंड वाइट में अभी कुछ हमने किया नहीं उनके साथ, बट द पैशन फॉलोज, इट इज म्यूजिकली ड्रिवन, एंड देन आई एम श्योर वी विल हैव a lot of good actors and actresses to join us. My question is to Ricky. Ricky, here, since you have been assigned the job of as a guest to announce the title. Millionaire of Love, right? No, I've just done. I've composed one song on the film. Yeah. So would you like to answer why Millionaires of Love? Because it sounds like Slumdog Millionaire. Oh no, that's not. That was not my decision. I just like the title, but the decision was, of course, the writer's decision. So I think that's a question for him. Yeah, could the writer answer it? Does it not resemble Slumdog Millionaire? Yeah, I will take at least 60 minutes to answer this talk. Okay. I'm just kidding. Let me tell you in just 30 seconds that passion is love and love is passion. We have one of our tagline called "A millionaire never goes bankrupt." And why think about millionaire of just money, rupees, paisa, dollars, right? You could be a millionaire of your art. You could be a millionaire of your love. जिसके साथ आप प्यार करते हैं। आपकी कला भी हो सकती है, आपकी चहेते भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। And let me tell you, each everyone sitting in this audience have experienced that if you have a passion, आपने सुबह भी खाना नहीं खाया होगा, शाम को भी खाना नहीं खाया होगा, तो भी आप रात को उठ के अपने पैशन के बारे में सोच सकते हैं और आपकी कला को आगे ले जा सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट द मिलियनेयर इज। और वो बैंकरप्ट नहीं जाता है, राइट? मोहम्मद फैज देर आए दुरुस्त आए, आपने दिल चुरा लिया गाना गा के, मगर दिल क्यों जलाया जबकि ये प्यार पे है गाना, मतलब आज इट इज अबाउट लव। तो 4 लाइन गुनगुनाइए जो आपने रिकॉर्ड किया है, इफ यू आर लाउड। No. Well, आप जो पूछ रहे कि मैंने सैड गाना क्यों गाया है, तो ऐसा कुछ सोच के नहीं गाया कि सैड है रोमांटिक है, वो बस मेरा गाना था तो मैंने गा दिया। कुछ और गा दो एक लाइन और प्यार वाला गाना। दिल जला गाना क्यों गाया? आज माहौल नहीं है प्यार का। I just wanted to add to add an answer to your question. So while we were recording the song, I had the honor of having Kadri ji, in the studio, and see, he walked in after we had recorded about 2 or 3 lines of the song, and it was quite amazing to see him in action because since he had written the words, he was really good at directing, the singer to actually get the right emotions out. And after he started directing this young singer, what happened was that the emotions started coming out better and exactly the way that I wanted, but I could not convey this as well, to the vocalist. So I ended up giving my chair to Kadri ji, and I told him that, you direct the rest of the song, and so that's why it was a beautiful collaboration. And
What was very surprising to me is that he had written the lyrics a few days before that. But I've never experienced a lyrics writer who knows the tune even better than I do. So that was pretty amazing. That he had by-hearted the tune, and I changed the tune a little bit just on the day of the recording, on the morning of the recording. Before we started recording, I changed a little bit of the tune because I felt one part was a little monotonous. And I did not tell him about it. And when the singer sang that part of the tune, he sang it in the new tune, and Kadri ji immediately looked at it. He's like, no, that's not the tune. This is the tune. And then I had to tell him, nay, I changed the tune in the morning. So that is what. So it is pretty amazing working with, and he's a legend for good reason, because he's really good at what he does. Thank you. Can we have a group picture? A group picture, actually.